ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ +2 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ। ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਲਾਸ +2 ਦਾ ਬੱਚੇ ਟਰਮ 2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡੇਂਜਰ ਲਾਈਟ ਆਰ ਰੈੱਡ ਇਨ ਕਲਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰ ਲਾਈਟ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੈਟਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਲਰਦਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਓਨਲੀ ਫॉर। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰਿਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/λ⁴। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਥਰਡ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਮਚ ਸਮੋਲਰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਬੱਚੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਅਕਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਦ ਕਲਰ ਵਿਚ ਡਿਵੀਏਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇਨ ਦ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸਿਵ ਪਾਵਰ। ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ। ਸੋ ਆਹ ਟਰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਊ -1। ਸੋ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਯੈਲੋ -1। ਸੋ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਦ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਜ਼। ਸੋ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? D ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1.22 ਲੈਮਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਫਿਲ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ in the refractive type telescope dash is used as an objective। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਦ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਇਜ਼ 20। ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ M ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਫ ਦ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦ ਆਈ ਲੈਂਸ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ME ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ? 5। ਦੈਨ ਦ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ MO ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? M is equals to ME.M0। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ M0। ਸੋ M ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20, ME ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਵਿਚ ਇਜ਼ 5। ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 4। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਿੰਪਲ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਸੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਛੋਟਾ ਆ, ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਰੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਬੂਠੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, B ਆ ਜੂਗੀ ਵਰਚੁਅਲ, ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ 9th ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕੀ ਆ? ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਲੈਂਸ ਛੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ, ਜਿੱਧਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਆਈ ਲੈਂਸ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਬਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਮੋਲ ਅਪਰਚਰ ਆ ਅਤੇ ਸਮੋਲ ਹੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ। ਸੋ 9th ਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੋਲ ਅਪਰਚਰ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। 10th ਦੇਖੋ,
मैगनीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टैलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट इज़ नॉर्मल एडजस्टमेंट बच्चे एम के इक्वल आ जाता एफ नॉट ओवर एफ ई सो एफ नॉट ओवर एफ ई मतलब कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ एक्सप्लेन वाई लाइट इज़ डिस्पर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म जिहड़ा प्रिज्म आ इस तरह का ये जिहड़ी वाइट लाइट आ वो डिस्पर्स क्यों हुंदी आ। सो आंसर देख लो बच्चे क्यों टुटदी है लाइट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मटीरियल मीडियम डिपेंड्स अपॉन द कलर मतलब वेवलेंथ ते डिपेंड कर दिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर जे डिफरेंट तुसी मटीरियल्स लाओगे तो वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोड़ा है अलग अलग होएगा। सो अलग अलग कलर्स का अलग अलग होएगा। इफ़ वी इंसीडेंट अ रे ऑफ वाइट लाइट ऑन अ प्रिज्म अगर असी एक वाइट लाइट इंसीडेंट करते हैं ऑन इमर्जिंग द डिफरेंट कलर्स आर डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। सो थानू पता बच्चे वाइट लाइट दे विचों 7 कलर्स टुटदे आ। सो किहड़े कलर्स होंदे आ वायलेट लाइट रैड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट ये सब दी जिहड़ी आ डेविएशन एंगल्स भी अलग अलग होंदे आ। ड्यू टू दिस इस वजह के नाल वाइट लाइट सप्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टेंट कलर इहदी वजह नाल ही जिहड़ी वाइट लाइट आ वो 7 कलर्स दे विच टुट जांदी आ। क्लीयर हो गया बच्चे क्यों टुट जाती है क्योंकि हर एक कलर की अलग अलग डेविएशन एंगल आ अलग अलग एंगल के उपर वो सप्लिट होंदी है टुटदी आ खिलर जाती है लाइट जिहदी वजह ना वाइट लाइट सप्लिट हो जाती है टुट जाती है 7 कलर्स दे विच। सो इस फिनोमिना नूं असीं डिस्पर्जन ऑफ लाइट कह दिंदे आ या फिर डिस्पर्जन कह दिंदे आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे म्यू वी एंड म्यू आर गिवन है ए गिवन है फाइंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन। सो असी एंगल ऑफ डिस्पर्जन फाइंड आउट करना विच इज़ अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है जी सॉरी मल्टीप्लाई बाय ए। म्यू वी कितना था बच्चे तुहाडे कोल 1.54 माइनस 1.52 मल्टीप्लाई बाय 60। 1.54 चो 1.52 माइनस कितना वी गेट 0.02 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री। बच्चे डेसीमल हटा दो नीचे आ गया 100 जीरो ना जीरो कटिया गया आ गया 12 डिवाइडेड बाय 10 सो वी गेट 1.2। सो आ बच्चे थोड़ा अल्फा का आंसर आ गया 1.2। 13th क्वेश्चन देखो इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ अ कलर ऑफ लाइट कहते अगर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर किसी कलर के उपर नहीं डिपेंड करती इफ़ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रैवल्स स्लोलर इन अ ग्लास प्रिज्म तो इन्हां दोनों के विचों किहड़ा जिहड़ा आ स्लोली मूव करेगा। सो द आंसर इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। सो इंडिपेंडेंट नहीं होंदा। ठीक है सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वायलेट कॉम्पोनेंट ऑफ अ वाइट लाइट इज़ अ ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेड कॉम्पोनेंट। वायलेट कॉम्पोनेंट का बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ग्रेटर हुंदा है रेड दे नालों। इहदा मतलब जिहड़ी स्पीड होएगी वायलेट लाइट दी वो लैस होएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा है म्यू और वी। ठीक है वी अगर इनक्रीज़ करूगा तो म्यू जड़ा डिक्रीज़ करेगा। सो सानू पता कि वायलेट का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ तो यदी स्पीड की होएगी घट होएगी दैन द स्पीड ऑफ द रेड लाइट हैंस वायलेट लाइट ट्रैवल्स स्लोलर दैन रेड लाइट इन अ ग्लास प्रिज्म। आई होप बच्चे तुहानू जिहड़ी आ एक्सप्लेनेशन आ क्लीयरली समझ लग रही होगी। तुसीं इन्ना भी लिख के आओगे या मैथमैटिकल पोर्शन के नाल भी लिख के आओगे तां भी तुहाडा जिहड़ा आंसर बिल्कुल करैक्ट होएगा क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। बच्चे तुसी सिंपल इनू मैथमैटिकल पोर्शन इस तरीके नाल भी लिख के अगर आओगे 1 मार्क्स दे विच तां भी तुहाडा आंसर बिल्कुल करैक्ट होएगा। ठीक है सो 2 तरीके आ चाहे थियोरी विच लिख दो चाहे तुसी मैथमैटिकल फॉर्म दे विच लिख दो। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे 14th क्वेश्चन आ राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्रैक्टिव टाइप्स टैलीस्कोप ओवर अ रिफ्रैक्टिंग वन। असी रिफ्रैक्शन वाला जिहड़ा टैलीस्कोप आ क्यों नहीं यूज़ करते रिफ्रैक्टिंग वाला टैलीस्कोप ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ एडवांटेजेस देने आ। ठीक है सो इस वीडियो के विच बच्चे ਅਸੀਂ सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ 2 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सैक्शन के जल्दी जल्दी कमेंट दे देना कि किहड़े क्वेश्चन के प्रॉब्लम आ वो वाले क्वेश्चन के नैक्सट बच्चे वीडियो बन जाएगी। ठीक है सो 14th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रोमैटिक अबर्जेंट्स होंदियां बच्चे एबसेंट होंदियां इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप दे विच वेयर एज इट इज़ प्रेजेंट इन अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप दे विच हुंदी आ ते रिफ्लैक्शन दे विच नहीं हुंदी। द एबसेंस ऑफ क्रोमैटिक अबर्शन जिहड़े बच्चे एबसेंट हुंदे आ ओहदी वजह नाल
इन अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप इज़ बिकॉज द ऑब्जैक्टिव इज़ अ मिरर, क्योंकि जो असी ऑब्जैक्टिव यूज़ करते हैं वो की यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं बच्चे ये। ठीक है। नैक्सट है इमेज आर ब्राइटर, इमेज जड़ियाँ आ ब्राइट बनदियाँ आ कंपैरेटिवली टू दैट इन अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप के नालों ज़्यादा जड़ियाँ आ इमेज आ वो क्लीयर तो साफ बनदियाँ, इस करके जी इनू प्रैफरेंस दिता जाता है। सो इस वीडियो का बच्चा साडा लास्ट क्वेश्चन आ, वट इज़ द इफेक्ट on angle of minimum deviation of a glass prism when the prism first held in air is immersed inside water। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वट इज़ द इफेक्ट, कहते की इफेक्ट होंदा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के उपर। सब तो पहला बच्चे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदा असी फाइंड आउट करना है ऑफ अ ग्लास प्रिज्म, ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। सो म्यू की वैल्यू किहदी इक्वल हुंदी आ साइन ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2, सारे नू डिवाइड किया साइन ए ओवर 2 दे। ठीक है जी, आ बच्चे थोड़े को एक फॉर्मूला आ। अगर असी डेल्टा एम कह रहे हैं कि इनक्रीज़ करेगा, अगर आ इनक्रीज़ करेगा ए विच ऐड हो जाऊगा तो जो म्यू आ वो भी थोड़ा की कर जूगा इनक्रीज़ कर जाएगा। सो तुसी लाइन बच्चे थे की लिखनी आ, इफ़ अ ग्लास प्रिज्म इज़ डिप्ड इन वाटर दैन relative refractive index decrease, so minimum deviation angle will also decrease। क्लियर हो गया बच्चे, तुसी किस तरीके ना आंसर लिखना है। इफ अ ग्लास प्रिज्म इज अ डिप्ड इन अ वाटर दैन रिफ्रैक्टिव relative index decrease, so minimum deviation angle is also decrease। सो नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आ। अगर थानू ये उत्ते वीडियो चाहिए तो बच्चे कमेंट सैक्शन के जरूर लिख देना, तो थानू जी इस टॉपिक्स के उपर, इस क्वेश्चन के उपर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।